Good morning, everyone. Today we will start with this chapter, Fire Insurance Claim. Now, the title says that the topic is about insurance. The claim, the amount which is claimed by the company when it goes for an insurance policy. And the name suggests that the policy is for fire, the loss against fire. So, what is the need of insurance? What is the need of insurance? A fire at a business place may destroy assets such as building, machinery, furniture, stock, etc. And it may also destroy the records. So it does not only destroy the assets but also creates dislocation in the usual working of the business concern. Means what? That when there is a fire, there may be like many changes, there may be many confusion, changes, record loss. So this may affect the working of the business. So a very prudent, a wise businessman prefers to take out an insurance policy to cover the risk of loss due to fire. So a wise businessman will prefer to take an insurance policy so that he can cover the risk due to loss by fire. So that is why there is a need for insurance. And what happens in the happening of an event, uncertain event of fire, the businessman may get the compensation equal to the loss which he has sustained. So this, for this purpose, what the businessman has to do, he has to lodge a claim for loss of stock with the insurance company. And in our syllabus, we have only loss of stock. So we do not have loss of asset and other things. We have only specifically loss of stock. So here we will be covering fire insurance claim for loss of stock. You know what stock means? Stock is the item in which the business deals with. जैसे for if the business sells furniture, furniture is a stock. If the business sells some kind of material, that material is a stock. So whatever the business deals with is our stock, and here we will be dealing with the fire insurance claim related to that particular stock. So now procedure of claim for loss of stock. So what will be the procedure to claim for the loss of stock? Let us see. If the procedure, if see for example, if proper stock records are maintained and such records are not destroyed by fire, proper stock records are there with the business and these records are not destroyed by fire. मतलब बिजनेस के पास बराबर रिकॉर्ड्स है और ये रिकॉर्ड्स फायर में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जला नहीं है, खत्म नहीं हुआ. So the steps will be like this, that firstly we will have to calculate the stock which was there on the date of fire from the stock records. हमारे पास stock records intact है, वो destroy नहीं हुआ fire में. तो what we will do, we will ascertain, we will calculate the value of stock on the date of fire. Means जिस दिन आग लगा उस दिन what was the position of stock,
what was, we have to calculate that stock from the records available, and उसमें से हम ये माइनस करेंगे कि हमने कितना स्टॉक salvaged किया. What do you mean by stock salvage? Stock salvage means that proportion of this, that part of the stock which was saved by the fire. Means जब आग लग रहा था तब आप ऐसे आप पूरी कोशिश करोगे कि आप ऐसे नहीं करोगे चलो इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जलने दो, जितना स्टॉक है जलने दो, बिकॉज इंश्योरेंस इज नॉट टू मेक प्रॉफिट. You should remember this thing that the insurance contract is a contract to protection against the loss. It is not to make a profit. तो जब भी आग लगेगा आप पूरी कोशिश करोगे कि आप जितना हो उतना स्टॉक को बचाओ, जितना हो उतना आप you will try to save the stock as much as you can, as much it's up to your limit, that much stock you will try to save. The stock salvage means the amount of stock which was saved by the company, the stock that the company could save from fire. तो जितना जिस दिन हम जब हम कैलकुलेट करते हैं the day when the fire took place, the amount of stock ऑन द डेट ऑफ फायर, मीन जिस दिन आग लगा बिजनेस में उस दिन बिजनेस में कितना स्टॉक था, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. उसमें से हम माइनस करेंगे कि कितना स्टॉक को हम बचा पाए, सैल्वेज कर पाए, स्टॉक सैल्वेज. I hope you are able to understand what is stock salvaged. Stock salvaged means the amount of stock which was saved by fire, which was saved from fire. So that is stock salvage. फिर हम add करेंगे abnormal stock. Now, what do you mean by abnormal stock? Abnormal stock is a stock which is slow moving or which are damaged are known as abnormal stock. मतलब ऐसा स्टॉक जो कि बाकी स्टॉक से मे बी देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर सेलिंग क्लोथ्स, आपके पास आपका बिजनेस क्या है, सपोज गारमेंट सेल करने का, तो आपके पास एक गारमेंट है जो हल्का सा डिफेक्टिव है, जो बाकी उस बाकी स्टॉक जो आपके पास है उससे थोड़ा अलग है, मे बी कलर वे देर इज अ वेरिएशन इन द कलर, और मे बी एक थोड़ा बहुत उसमें से कुछ डिजाइन है वो फेड हो गया है, या मतलब इट मे बी अननोटिसेबल, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा. दैट काइंड ऑफ स्टॉक कैन बी टोल्ड एज abnormal stock, different than the other stock which you are dealing with. Little bit variation is there, that variation may be unnoticeable, but आप जब ध्यान से देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा. तो वैसे स्टॉक को भी हमें ध्यान में लेना है, कंसिडर करना है, विल बी इक्वल टू द स्टॉक लॉस्ट बाय फायर. तो हम क्या करते हैं, जितना भी स्टॉक है जो हमारे पास था इन द डेट व्हेन द फायर टुक प्लेस, उसमें से मतलब उतना सब गुड्स तो आग में जल गया रहेगा. जितना स्टॉक हमारे पास आग लगने के दिन था, एक्चुअली वो सब स्टॉक के लिए हमें पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक तो हमने क्या किया रहेगा, बचाया रहेगा फ्रॉम द फायर. वी मस्ट हैव ट्राई टू सेव इट. और उसके बाद जो भी अबनॉर्मल स्टॉक है उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए, तो वो भी ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा द स्टॉक लॉस बाय फायर. मतलब दिस इज द स्टॉक विच हैज बीन लॉस बाय फायर. फिर इससे हम क्या करेंगे, इसमें इसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे
Claim means what? Claim means the compensation that we expect from the insurance company, or the compensation that we will demand from the insurance company. When you take an insurance policy, you will pay a fees to the insurance company. Whenever you take a policy, fire insurance policy from the insurance company, you will pay a you will pay a fees to the insurance company. That fees is the premium, correct? That fees what you pay to the insurance company is the premium. That premium may be monthly paid, maybe annually paid, maybe half yearly paid, और मे बी क्वार्टरली पेड. आप वो प्रीमियम को कैसे भी पे करो वो आपका लुकआउट है. लेकिन आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और टाइमली आप प्रीमियम पे करते हो, तो यू आर एलिजिबल to get the compensation claim from the insurance company. And this claim can be asked, demanded only on the happening of a uncertain event. मतलब when there will be an occurrence of fire in your premises, you may demand from the insurance company for the claim. Claim is the compensation for the loss that has been incurred by the business. तो उसके लिए वो क्लेम कैसे कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है? If they say, if there is an average clause in the insurance policy, so if there is an average clause in the insurance पॉलिसी, मतलब आपका जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने पॉलिसी लिया है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, उसमें आपको ध्यान देना है कहीं उधर एवरेज क्लॉज तो नहीं है. व्हाट इज दिस क्लॉज ऑफ एवरेज क्लॉज? सो this average clause is actually a clause to discourage, like as per the clause, the insurance company pays compensation to the insured proportionally, proportion में, ratio में, if the value of the stock on the date of fire is more than the amount of policy. मतलब ये average clause कब रहता है? हम एवरेज क्लॉज पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज का मीनिंग ये है कि कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको प्रपोर्शन में, रेशो में, मतलब वो आपको पूरा लॉस कवर करके नहीं देगी, वो आपको प्रपोर्शन में पैसा देगी. अगर आपका लॉस पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा है, अगर आपका लॉस पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा है, अगर आपका पॉलिसी अमाउंट इस 1 लाख एंड अगर आपका वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इस 1,20,000, मतलब जिस आपका जो ऑन द डेट ऑफ फायर आपका जो स्टॉक है वो आपके पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा है, मींस आपका पॉलिसी, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया 1 लाख का, लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया, ascertain किया the value of stock on the date of fire, जिस दिन फायर लगा उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था वो आपने कैलकुलेट किया, तो वो स्टॉक का अमाउंट इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट. दैट टाइम average clause will be applied, average clause will be applied and आपको proportion में पैसा मिलेगा. आपको पूरा 1,20,000 नहीं मिलेगा, या तो आपको पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा. there will be a, there is a formula for the average stock. There is a formula for the average stock which I will discuss later in this lecture, later part of the lecture. But now how to compute the claim?
क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए सी हियर आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर एवरेज क्लॉज. इट इज पॉलिसी, इट इज अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जितना भी पॉलिसी अमाउंट है डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक. मतलब एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है? व्हेन देयर इज एवरेज क्लॉज, क्लेम का फॉर्मूला ऐसे रहता है, व्हेन देयर इज एवरेज क्लॉज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, द फॉर्मूला ऑफ द क्लेम विल बी अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये हम कैलकुलेट करेंगे, इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक. एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल लॉस में हम क्या करते हैं, स्टॉक सैल्वेज्ड हम माइनस करते हैं. तो यहाँ पे देखो, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर into average, into actual loss of stock. 1 minute. Okay, so this is the slide, so now we will move to the another slide. If the proper stock records are not maintained, अभी इससे पहले जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें स्टॉक आग लगा है, यस, बट स्टॉक रिकॉर्ड्स इंटैक्ट है, वो हमने देखा. बट ऐसा भी तो हो सकता है दैट व्हेन देयर इज अ ऑकरेंस ऑफ फायर, प्रॉपर, या तो ऐसा हुआ है द स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, or the condition may be that the records are maintained properly but they could not be saved, saved means they are destroyed by fire. मतलब क्या, या दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन, हम मतलब मे बी अकाउंटेंट कुड नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड वो मेंटेन करता है लेकिन कुछ टाइम के लिए ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स. और it is, there may be also a possibility that the proper records are maintained but they are destroyed by fire. दो चांसेस हो सकता है. तो वो सिचुएशन में हम अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे फाइंड आउट करें? व्हेन ये एक तो हमने प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया और यहाँ पे सारा स्टॉक जल गया. दूसरा, मेंटेन तो किया रिकॉर्ड्स बट वो रिकॉर्ड जो है वो आग में डिस्ट्रॉय हो गया, वो फायर में डिस्ट्रॉय. एक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, दूसरा मेंटेन किया रिकॉर्ड बट वो रिकॉर्ड्स भी आग में डिस्ट्रॉय हो गया. ऐसे दो चांसेस है. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स का परसेंटेज होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 किया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पता चलेगा. ग्रॉस प्रॉफिट upon sales, because gross profit is a percentage of sales, तो sales का gross profit का amount divide by sales का amount into 100 किया तो हमें percentage of gross profit मिलेगा. but in absence of any information हम क्या करते हैं, it is necessary to take the figures of previous year for deciding the percentage. प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालते ग्रॉस प्रॉफिट का. या तो हम क्या करते हैं, या तो
या in case information about sales and gross profit is available, तो हम उसका परसेंटेज ऑफ ग्रॉस, सपोज हमारे पास प्रीवियस ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है और सेल्स का इंफॉर्मेशन है, तो उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और हम अकॉर्डिंगली इस साल भी वही परसेंटेज अज्यूम करेंगे। या तो हमें प्रीवियस कुछ साल का परसेंटेज दिया है तो हम उसका एवरेज निकालेंगे। जैसे हमें बोला पिछले 3 साल का ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन है, तो वो 3 साल का इंफॉर्मेशन को ऐड करके हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। या तो हमें 4 ईयर का इंफॉर्मेशन पता है, तो 4 ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे। हमें 2 ईयर का इंफॉर्मेशन पता है, तो 2 ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन जो पता है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। मतलब जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाय दिस वे वी में, और या तो हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन पता है तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन पता है, हमें प्रीवियस ईयर का सब इंफॉर्मेशन पता है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, हाउ मच वाज द प्रीवियस ईयर परसेंटेज ऑफ, सॉरी, हाउ मच वाज द प्रीवियस ईयर परचेज, हाउ मच वाज द प्रीवियस ईयर सेल्स, हाउ मच वाज द प्रीवियस ईयर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब हमें पता है। तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें चाहिए, तो हम क्या करते, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज हमें चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स into 100, we will get the gross profit परसेंटेज। इसके बाद एक होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फायर, दैट इज ओपनिंग डेट from the date till the occurrence of fire। देखो occurrence of fire can be any particular day of the year, ऐसा नहीं है कि वो ईयर एंड में ही आग लगेगा। आग जो है वो बोल के नहीं लगता, वो आग बिजनेस में कभी भी लग सकता है। इट में बी the first day of the year, it may be any middle day of the year, it may be any time of the year, we don't have any control on that because it is a uncertain event, it is not a fixed event, it is a contingent event, it may occur any time of the year, it may also occur, it may not also occur, but इंश्योरेंस हमारा जो है हम टाइमली पे करते रहते हैं, हम इवेंट होने का वेट नहीं करते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि कभी आग लगेगा या नहीं लगेगा, बट हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड होके चलते हैं कि आग लग भी सकता है बिजनेस में, तो हमें इसका पॉलिसी, इस इंश्योरेंस बाय फायर पॉलिसी एडवांस में लेके चलना चाहिए। बिकॉज देखो, इन अ पर्सनल एग्जाम्पल, मेनी ऑफ यू विल बी हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट ये हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कब वो अनसर्टन इवेंट हो, और हम यही प्रे करते हैं कि ऐसा इवेंट कभी ना हो। बिकॉज insurance is not to make a profit, it is to save, protect from the loss, करेक्ट। मतलब कोई भी बिजनेस आग के लिए पॉलिसी लेकर ये प्रे नहीं करेगा कि आग लगे, मुझे मेरा इंश्योरेंस का पैसा
जो है वो वसूल हो जाए, मिल जाए, बिकॉज इंश्योरेंस इज नॉट टू मेक अ प्रॉफिट, इट इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लॉस। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी हम यही प्रे करेंगे कि कभी भी आग ना लगे, हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम लेने का नौबत कभी ना आए, हम यही प्रे करेंगे। वी विल नेवर विश दैट there should be a occurrence of fire, correct? और जैसे और इन द अदर एग्जाम्पल, अवर पर्सनल एग्जाम्पल, वी टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, फैमिली का पॉलिसी होता है, इंडिविजुअल पॉलिसी होता है, लेकिन हम कभी भी ये प्रे नहीं करते कि उसे यूज करने का मौका मिले। हम हमेशा यही प्रे करते हैं, यही विश करते हैं कि इसको हम पे करते रहे और कभी उसको लेने का, क्लेम करने का मौका नहीं आए तो ही अच्छा है। और अगर ऐसा कभी होता भी है तो बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस वी आर लिटिल बिट, नहीं तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में आते। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी होने से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता है। वो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेस तो होगा ही, but the level will be little less as compared to if there was no insurance policy, उससे comparison में stress level will be little lower। तो यहाँ पे see what we do, we prepare the memorandum trading account. Memorandum trading account means a trading account till the date of fire, trading account till the date of fire। यहाँ पे क्या आता है, this account is prepared from the period, sorry, this account is prepared for the period from last date of accounts to the date of fire which is given in the problem। मतलब हमारा ओपनिंग, अपना लास्ट ईयर का क्लोजिंग, जब तक हमने लास्ट ईयर का अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था, मींस हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। मतलब ओपनिंग डेट से लेके जिस दिन आग लगा उस दिन का जो हम लोग उस दिन के पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इसमें ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेसेस रहे, ओपनिंग स्टॉक विल बी द लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, और परचेसेस रहेगा टिल द डेट ऑफ फायर, एंड सेल्स रहेगा टिल द डेट ऑफ फायर, एंड वेजेस अगर रहा तो इट विल बी टिल द डेट ऑफ फायर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहेंगे till the date of fire, till the date of occurrence of fire। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से हम जो लास्ट ईयर का ये जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमेशा प्रीवियस ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा हम उसी का परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं। इस पीरियड का सेल्स हमें पता रहेगा टिल द डेट ऑफ फायर, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा। मैं इसका फॉर्मेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आई विल डिस्कस नेक्स्ट। ये होने के बाद आई विल डिस्कस द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, एंड देन जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है ना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, इट इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ध्यान में रखो, जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, इट इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। दैट इज द स्टॉक जिसके ऊपर हमें इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन क्लेम करना है। देन लॉस ऑफ स्टॉक is the stock which is lost. Loss of stock is the stock which is lost by fire. Loss of stock is the stock
विच इज लॉस्ट बाय फायर, इसमें से हम साल्वेज स्टॉक माइनस करते हैं। मतलब सपोज आग लग गया, उसमें से हमने 10,000 का स्टॉक बचा लिया, तो वो माइनस करके बाकी का स्टॉक तो जल गया। मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन हमने 10,000 वर्थ का स्टॉक आग से बचा लिया, तो उसको बच माइनस करके बाकी का सारा स्टॉक जल गया। तो दैट इज द लॉस ऑफ स्टॉक। एन एवरेज क्लॉज, एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ clause, this is a clause the insurance company, see, as per this clause the insurance company pays compensation to the insured। मतलब कि कैसे compensation pay करती है? Proportionally, if the value of the stock on the date of fire is more than the amount of policy। अगर पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा है हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, तो हम प्रपोजन में, रेशो में क्लेम पे करेंगे। कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस इज द क्लॉज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके साथ नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल go to the format. I hope this screen is visible to you. Now what we will do, we will prepare the pro forma और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या करेंगे अभी? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल डेट ऑफ फायर। तो so here we'll insert trading account, particulars, rupees, particulars, rupees. So this is our trading account। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक रहेगा। फिर क्या रहेगा? टू परचेसेस, ये परचेसेस है टिल द डेट ऑफ फायर। ये परचेसेस क्या है? टिल द डेट ऑफ फायर। तो जिस दिन, ये कौन सा परचेस है? ये पूरे साल का परचेस नहीं है। दिस इज द परचेस फ्रॉम द बिगनिंग डेट टिल द डेट ऑफ फायर। तो फिर हमारे पास रहेगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, manufacturing expenses, this also will be till the date of fire। फिर हमारे पास रहेगा टू वेजेस, ये भी रहेगा till the date of fire। All the expenses, what are their expenses and income, are all till the date of fire। Carriage inward, carriage inward means transportation expenses related to purchase of goods, तो till the date of fire। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाई सेल्स, बाई सेल्स। तो सेल्स में से हम एक और चीज माइनस करते हैं, दैट इज, और ये सेल्स कब तक है? टिल द डेट ऑफ फायर। तो इसमें से हमने रिटर्न्स माइनस किया, वी हैव माइनस द रिटर्न्स। सो इसके बाद
if there is any information of stock distributed, ये अगर क्वेश्चन में है, as free samples, और अगर क्वेश्चन में है बाय स्टॉक सेंट ऑन consignment. So consignment is a agreement. This is a see, you have this consignment account as your in your syllabus of this semester. So consignment, as I had told you during the introduction lecture, that this is a contract between the principal and the agent. मतलब the owner of the goods gives the contract to an other person, to an agent on his behalf to sell the goods to sell the goods. तो उसके बाद गुड्स सेल होने के बाद द एजेंट विल रिटर्न द प्रॉफिट्स to the owner of the goods consigner and will charge some commission. The agent is also known as the consignee. So consignment of goods, so stock sent on consignment. अगर हमने कोई स्टॉक को बाहर सेंड किया है फॉर कंसाइनमेंट सेल, तो वो हम माइनस वो इधर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में. और अगर कोई स्टॉक है बाय स्टॉक सेंट ऑन अप्रूवल, अप्रूवल मतलब सेल किया है गुड्स बट अभी तक अप्रूवल नहीं आया कि वेदर ये गुड्स उनको पसंद है कि नहीं पसंद है, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, तो हम उसको एक एक्चुअल सेल कंसीडर नहीं करते. सी व्हेन वी सेल टू समवन ऑन क्रेडिट वी गिव सम टाइम लिमिट. बाय दैट विद इन दैट टाइम फ्रेम इफ द customer does not like the product, he will return the goods to the back to the company. तो उसको बोलते goods sold और send on approval. तो ये सब हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक तो चीज है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक चीज है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, या तो जिसको हम बोल सकते हैं बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. दो चीज बैलेंसिंग फिगर नहीं हो सकता. ग्रॉस प्रॉफिट हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं ऑफ सेल्स, मतलब लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा या नहीं दिया तो हम फाइंड आउट करेंगे. तो उसका परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब लास्ट ईयर का 20% है सेल का, कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. आई विल शो हियर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. तो यही परसेंटेज हम यहाँ पे लेंगे. सेल्स का जो भी नेट सेल्स का जो भी अमाउंट है उसका ये जो परसेंट यहाँ पे आया वो परसेंटेज निकालेंगे. तो लास्ट ईयर जो भी परसेंट है मेमोरेंडम में मानते अभी भी वही परसेंटेज होगा और हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है. तो ये साइड का टोटल निकालते हम देखेंगे कि डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हैवी है. नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर ये सब में हमेशा डेबिट साइड हैवी रहेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी तक लिखा नहीं है. तो यहाँ पे हमें माइनस करेंगे तो पता चलेगा ये वो स्टॉक है जो आग लगने के दिन हमारे पास था. ये वो स्टॉक है विच वॉज देयर ऑन द डेट ऑफ फायर एंड दिस इज द बैलेंसिंग figure. This is the balancing figure. So ये हमें find out करना है with the help of memorandum trading account. So this is our memorandum trading account.
With this memorandum trading account is done, and from next lecture onwards we will start with the practical sums of this chapter. Until then, thank you very much, all of you. I will end the lecture now.